two-dimensional reflection symmetry, linear symmetry. What is linear symmetry? A figure is said to be symmetrical about a line. This is a line. If it is identical on either side of line. इसका मतलब क्या है? A figure, ये figure है. It is said to be symmetrical, मतलब equal, same. About a line L. This is a line L. This is a line L. If it is identical on the either side of L. इधर मतलब line के इधर भी same है और line के इधर भी same. And L is known as the line of symmetry or the axis of Symmetry. This line is known as the line of symmetry or the axis of symmetry. Look at the design given here with. If we fold it along the line AB, AB, we shall find that the designs on the two sides of AB exactly coincide with each other. Coincide मतलब एक के ऊपर एक. ये कह रहा है अगर इस लाइन से हम फोल्ड करेंगे, इस लाइन से अगर हम फोल्ड करेंगे तो और इसको ये एग्जैक्ट एक के ऊपर एक पूरा का पूरा आएगा. तो जब वो एग्जैक्ट एक के ऊपर एक आता है तो मैथ्स में उसे कोइंसाइड कहते हैं. कोइंसाइड कहते हैं. क्या कहते हैं? कोइंसाइड. कोइंसाइड कहते हैं. क्या कहते हैं? कोइंसाइड कहते हैं. और अगर ये एग्जैक्ट हर पॉइंट एक के ऊपर एक आता है तो हम इसे कहते हैं कि दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ए बी. इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ए बी. एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर सिमेट्री. A line segment is symmetrical about its perpendicular bisector. हमें perpendicular bisector पढ़ा है. क्या होता है perpendicular bisector? जो एक लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में काट देता है. ये कह रहा है let AB be a given line segment. AB is a given line segment and let POQ be the perpendicular bisector of AB. ये AB है और POQ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. मतलब POQ इस AB की लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. हेंस द लाइन सेगमेंट AB इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अबाउट इट्स परपेंडिकुलर. लाइन सेगमेंट AB सिमेट्रिकल है. क्या है? सिमेट्रिकल. अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कैसे बोलोगे? अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. line segment AB is symmetrical about its perpendicular bisector POQ. A given line having equal arms is symmetrical about the bisector of the triangle. Listen, let angle AOB, focus here, only here. AOB is the angle. AOB is the angle and the arms are OA and OB. Arms are OA and OB. Let OC be the bisector of AOB. Let OC be the bisector of AOC. वापस सुनो. Very good. Again क्या बोलोगे? Let what be the bisector? OC is the bisector. OC is the bisector. OC is the bisector. OC is the bisector. Let AOB be the given angle with arms OA and O. आर्म हमेशा O से शुरू होता है यार. ज्योमेट्री कैसे करोगे? OA and OB and OC be the bisector of angle AOB. Then clearly angle AOC and BOC are identical. अगर बीच में बाइसेक्टर है बीच में तो 100% ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल. दे आर सिमेट्रिकल. दे आर आइडेंटिकल. दे आर सिमेट्रिकल. सब एक ही वर्ड से. दे आर आइडेंटिकल. दे आर सिमेट्रिकल. इधर आ जाओ. उसको मैंने जो ऑन किया ऑन करके देते रहो. दे आर आइडेंटिकल. दे आर सिमेट्रिकल. हियर एंगल AOB is symmetrical about the bisector AOB is symmetrical about the bisector OC is symmetrical about the bisector OC is symmetrical about the bisector OC. Next, एक isosceles triangle is similar about the bisector of the angle included between the equal sides. बाद में थियोरी पढ़ेंगे. पहले इधर आ जाओ. फिर मेरे वाला ऑन कर दो. बाबा मैंने जो भेजा कतन क्या कर देते.
लेट ट्राइंगल ABC बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? इसके कितने साइड्स इक्वल होते हैं? इसके 3 साइड व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? Two sides equal and sides equal and one side different. isosceles triangle has a triangle with two sides Two sides equal and one equal side and side different. In which AB and AC C are equal. ये और ये equal है. And let AD be the bisector of triangle BAC. AD को बाइसेक्टर बनाया है. बाइसेक्टर था नहीं. बाइसेक्टर आइसोसेलेस था तो ये दोनों इक्वल तो थे ही, ये वाला इक्वल नहीं था, इसलिए इसका बाइसेक्टर बनाया है. क्या बनाया है? बाइसेक्टर बनाया इसका. अब ये कह रहा है लेट ट्राइंगल ABC बी फोल्डेड. ABC को हम फोल्ड करेंगे अलॉन्ग AD. देन ADC कोइंसाइड्स एग्जैक्टली विथ ADB. अगर हम इसको AD पे फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे? ये पूरा ट्राइंगल ABC को एग्जैक्ट AD से फोल्ड करेंगे. क्या करेंगे? एग्जैक्ट AD से, क्योंकि हमने इसको बाइसेक्टर बना दिया था. क्या बना दिया था? बाइसेक्टर बना दिया था. तो ADC जो है वो एग्जैक्टली किसके ऊपर आएगा? ADC किसके ऊपर आएगा? अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे फोल्ड करूँगी तो CB पर आएगा ना. अगर ये ट्राइंगल है मानो, अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी तो कहाँ आएगा? CB के ऊपर आएगा और A तो A के ऊपर ही आएगा ना, और AD के ऊपर ही आएगा. तो ADC will come exactly on ADB. इसे कोइंसाइड करना कहते हैं. क्या कहते हैं? तो आपको एक मतलब आपको बाइसेक्टर एग्जैक्ट चाहिए तभी ही आप सिमेट्री बना सकते हो. नेक्स्ट कम हियर. Thus triangle ADC is identical with triangle ADB. A kite has one line of symmetry only. Kite की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नेमली द डायगोनल शोन डॉटेड. एक ही सिमेट्री होती है. क्या होती है? एक ही सिमेट्री होती है इन द एडजॉइनिंग फिगर. अब इसकी सिमेट्री कैसे बनाते हैं ये लोग? हियर ABCD is a kite. ABCD is a kite in which AB equals to AD. AB equals to AD. AB equals to AD and BC equals to CD. and C. If we fold the kite along the line AC, if we fold the kite along the line AC. ये क्या कह रहा है? एक काइट है Kite है. जिसमें AB और AD इक्वल हैं और BC और CD इक्वल है. DC इक्वल है. नॉर्मली काइट में ऐसे ही होता है. क्या होता है? DC. AB और AD इक्वल होते हैं और BC और DC इक्वल हैं इसके अंदर. अगर हम फोल्ड करते हैं काइट को अलॉन्ग द लाइन AC, इस लाइन पे फोल्ड कर देते हैं, क्या करते हैं? तो D B के ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ. और AC की लाइन एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आएगी. पॉज करना. Hence the kite ABCD is symmetrical about the diagonal AC. Clear? Yes ma'am. A semicircle. A Semicircle. semicircle मतलब आधा सर्कल. ये रहा ACB. इधर आ जाओ, हमको थियरी बुक में से मिल जाएगी. ACB is a semicircle. Semicircle. ACB is a semicircle. ACB is a semicircle. PQ is a perpendicular bisector. अगर PQ बाइसेक्टर है मतलब वो इस AB की लाइन को इक्वल पार्ट्स में काट रहा होगा. तो PQ is the perpendicular bisector. क्या है? Of AB. If we fold the semicircle along the line PQ, we will find that the two parts B will coincide with A and CQ will be exactly on CQ only, right? Yes ma'am. So hence the semicircle can be symmetrical. तो मैम आपको कोई भी फिगर दे देगी, आपको उस फिगर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर सिमेट्रिकल करना आना चाहिए. आप समझ रहे हो? जो साइड इक्वल है वो तो ऑलरेडी इक्वल है, जो नहीं इक्वल है बस उसी को इक्वल करना है. नेक्स्ट, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? फर्स्ट टेल मी. Trapezium is a What is a trapezium? Isosceles another two times. What is a trapezium? Pause.
पहले हम ट्रेपेजियम का हम एक सम आया था तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक फिगर जिसके 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड इसका बस पैरेलल होता है, दूसरा साइड पैरेलल नहीं होता, मतलब ये तो कभी भी मिल जाएगा, ये वाला साइड जीवन में कभी नहीं मिलने वाला क्योंकि दोनों सीधे जा रहे हैं। अगर आप पिछली रोड पर जा रहे हो, इस रोड पे जा रहे हो और मैं इस रोड पे जा रही हूँ तो हम कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम दोनों इस रोड पर ऐसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दोनों रोड पे ऐसे तो हम कभी ना कभी मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या करेंगे? मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल वो होता है, ट्रेपेजियम वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सिर्फ एक साइड पैरेलल होता है। यहाँ पर PQRS एक A trapezium is said to be an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal. इसे हम isosceles कब कहते हैं? जब इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये जो नॉन पैरेलल पैरेलल नहीं है, ये इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब बनेगा? ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब बनेगा? जब इसके नॉन इक्वल साइड्स इक्वल होंगे। अरे नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे। एक साइड तो इसका पैरेलल होता है, एक साइड तो इसका पैरेलल होता है, एक साइड तो इसका पैरेलल। जो नॉन पैरेलल साइड है, जो नॉन पैरेलल साइड है, वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जो पैरेलल साइड है उसकी बात नहीं हो रही, जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल होना, तब हम उस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। इन द फिगर PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इन विच, देखो एक पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू SR और PS इज इक्वल टू QR। तो समझ आ गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या कहना चाहता है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम कौन सा सम कर रहे थे? ये कर रहे थे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए इन्होंने एक एक डैश यहाँ पर लगा दिया है। क्या लगा दिया? एक डैश यहाँ पे लगा दिया। नेमली द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेपेजियम। इसको समझते हैं। लेट ABCD बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। एंड AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। Let E and F be the midpoints of A and B. E and F be the midpoints of A and B. E and F be the midpoints of A and B respectively. If we fold the trapezium along the line EF, if we fold the trapezium along the line EF, यहाँ पर हम ट्रेपेजियम को फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेपेजियम को फोल्ड करेंगे। क्या? पॉज करो, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पर देखा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कि AB और CD इसके पैरेलल साइड्स थे और नॉन पैरेलल साइड्स जो थे, जो पैरेलल नहीं थे, वो इक्वल थे। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे बोला कि ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC and AD is equal to, it is not parallel, it is equal to BC. E and F be the midpoints, of AB and DC. एग्जैक्ट मिड पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होने के लिए आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। If we fold the trapezium along the line EF, along the line B, we will find two parts that will coincide with each other. B will fall on A and C will fall on D exactly, right? So the trapezium ABCD is symmetrical about the line EF. About the line EF. A rectangle has two lines of symmetry. A rectangle has two lines of symmetry. Each one of which being the line joining the midpoints of the opposite sides. पर इसको करते हैं फिर थियरी समझेंगे। रेक्टेंगल पे फोकस करो। Let ABCD be a given rectangle, okay, and let P and Q be the midpoints of AB and DC respectively. तो क्या कह रहा है?
Let A, B, C, D be a given rectangle and P and Q should be the exact midpoints. Midpoints आप perpendicular bisectors से निकालो, जैसे मर्जी निकालो, ठीक है. Q and P. Now if we fold the rectangle along the point Point PQ, PQ. we'll find that the two parts again coincide with each other. Coincide each other. So exactly आपका कोई भी चाहे rectangle हो, कुछ भी हो, अगर वो coincide करेगा exactly तो वो symmetrical होगा. क्या होगा? Symmetrical होगा. Similarly if R and S, if R and S. be the midpoints of, इसका भी तो midpoint निकालना पड़ेगा. Yes, ma'am. AD and BC क्या निकालना पड़ेगा? D and BC. Then the rectangle ABCD will be symmetrical about the line RS, about the line. RS. देखो हमने पहले जो सिमेट्रिकल निकाला वो यहाँ से निकाला. क्या निकाला? यहाँ से निकाला. फिर हमने जो सिमेट्रिकल निकाला वो ये बीच में से निकाला. पहले हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल करा, फिर हमने ऊपर और नीचे वाले लाइट को इक्वल करा. तो तभी जाकर ये फिगर सिमेट्रिकल बने. अब ये वाले जो फिगर्स है ना, ये ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल नहीं बन सकते, आप समझे. लेफ्ट और राइट में ही इक्वल डिवाइड हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? ये भी लेफ्ट और राइट में ही डिवाइड हो सकते हैं. A rhombus is symmetrical about each one of its diagonals. What is a rhombus first? Let's go back. What is a rhombus? Here, let's understand what is a rhombus. A rhombus is a parallelogram. What is a parallelogram? What is a parallelogram? A quadrilateral will give It has only, that is quadrilaterals. Parallelogram is which both pairs of opposite sides are parallel. Parallelogram वो होता है जब दोनों साइड पैरेलल होने चाहिए, तभी उसको पैरेललोग्राम बोला जाता है. क्या बोला जाता है? जब इसको अगर दोनों पैरेलल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं है. क्या नहीं है? पैरेललोग्राम नहीं है. तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, मतलब उसके दोनों साइड्स पैरेलल तो हैं और उसके सारे साइड्स इक्वल हैं. सारे इक्वल हैं. इट इज काइंड ऑफ अ स्क्वायर बिकॉज इट हैज ऑल द साइड्स इक्वल, बट इट इज पैरेलल. इट इज so AB is parallel to DC, AD is parallel to BC, and AB, BC, CD and DA are equal. Properties of a rhombus. The opposite sides of a rhombus are always parallel. The opposite sides of a, मैंने कहा था ना सारे ये इससे पैरेलल होगा और ये इससे पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो सारे ही पैरेलल होंगे. क्या होंगे? ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे. क्या होंगे? ऑल द साइड्स इक्वल होंगे. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. और जो डायगोनल्स है ये डायगोनल्स है जिनको बीच में से, डायगोनल्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे को काटते हैं, कट करते हैं. दे बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मतलब एग्जैक्ट इनको राइट एंगल्स पे कट करते हैं. क्या करते हैं? इनको राइट एंगल्स पे कट करते हैं. क्या करते हैं? अभी देखो ये पैरेलल की साइन ऐसे लगाई जाती है. देखो इधर देखो, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC. AB इज इक्वल टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA. अब यहाँ आ जाओ. लेट एंगल DAB, दिस एंगल DA विल बी इक्वल टू एंगल BCD. ऑपोजिट है ना, इसलिए क्या है? और ABC विल बी इक्वल टू, एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Opposite angles are equal. All sides are equal. All sides are equal. And the diagonals bisect each other at 90 degree. At 90 degree. Clear? Yes. Next, come here. Rhombus के बारे में पढ़ा था ना हमने. Yes, ma'am. Let ABCD be a rhombus. ABCD be a rhombus. Now if we fold it along the diagonals, उसके डायगोनल से हम उसको फोल्ड करेंगे क्योंकि उसके सारे साइड से इक्वल होते ही हैं और डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं. तो हमें कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है कि रोम्बस इटसेल्फ डिवाइडेड प्रॉपर्ली होता ही है क्योंकि उसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, उसके डायगोनल्स भी, उसके साइड्स भी इक्वल. इसको डायगोनल से अगर ये कोई क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे. क्या कर देंगे? नाउ इफ वी फोल्ड इट अलोंग द डायगोनल, AC से अगर फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे? AC से अगर फोल्ड करेंगे तो भी ये एग्जैक्ट कोइंसाइड करेगा. और अगर BD से भी ये फोल्ड करेंगे तो भी एग्जैक्ट कोइंसाइड करेगा. ठीक है. तो इसकी
2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। कितनी लाइंस ऑफ टू सिमेट्री? लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ स्क्वायर, स्क्वायर तो आपको पता ही है, स्क्वायर की 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। कितनी होती हैं? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्यों होती है? द डायगनल्स एंड द लाइंस जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। कैसे पता चलेगा? अभी देखो, इधर आ जाओ। लेट ए बी सी डी बी द गिवन स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर स्क्वायर है। एंड ई एफ जी और एच उनके मिड पॉइंट्स हैं। क्या है? E देखो ना, ए बी का मिड पॉइंट कौन है? ई है। सी डी का मिड पॉइंट एफ है F है। और बी सी का एच है और ए डी का जी है। G है। ये सब मिड पॉइंट्स है। क्या है? मिड पॉइंट्स। देन इट इज इजी टू सी दैट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ द लाइंस A C ए सी B बी डी E F ई एफ एंड जी एच। H। तो सिमेट्रिकल हुआ कि नहीं हुआ? Yes ma'am। Start। An equilateral triangle is symmetrical about each one of its bisectors of its interior angles. इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब पहले क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते तीन हैं। साइज इक्वल होते हैं। तो मानो ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ट्रायंगल है। ठीक है? तो ए डी A D बी ई B E ये ऑपोजिट साइड्स को इक्वल Equal कट कर रहा है। क्या कर रहा है? काट रहा है। ये ए सी को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, Yes ma'am। ये बी ए को मिड पॉइंट एफ पे कट कर रहा है और ये बी सी को मिड पॉइंट डी पे कट D कर पे रहा कट है। कर रहा है। अगर आपने इस तरीके से कट कर दिया तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल सिमेट्रिकली फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकली फोल्ड। कौन कौन सी लाइंस पे होगा? ए डी पे हो AD जाएगा, पे हो जाएगा, बी ई पे हो जाएगा और एफ सी पे हो जाएगा। क्लियर? Yes ma'am। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। कितनी होती है? 3 लाइंस ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। symmetry. A circle is a symmetrical about each of its diameters. Diameters। Thus, each diameter of a circle is an axis of Symmetry। Here, a number of diameters of a circle have been drawn. Diameter वो होता है जो सेंटर से पास होता है। जो सेंटर से पास होता है। क्या होता है? डायमीटर। जो सेंटर से पास होता है। A number of diameters of a circle have been drawn. देखो, ये भी लाइन सेंटर से जा रही है, ये लाइन भी सेंटर से जा रही है, ये लाइन भी सेंटर से जा रही है। जो लाइन सेंटर से जाती है पूरे सर्कल को कट करती है वो डायमीटर होती है। डायमीटर होती है। तो इसके इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री मतलब कितने भी डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट का मतलब क्लियर? यस मैम। A scalene triangle. What is a scalene triangle? जिसके all sides are different. It has no line of symmetry. No line of symmetry. A parallelogram. What is a parallelogram? हमने अभी किया था. A parallel which Whose all the sides are opposite sides both are sides are parallel. parallel. Yes ma'am। It also has no No line line of of symmetry। symmetry. It has no line of symmetry। symmetry. और आपको इन लाइंस को भी काटना है कि ए इक्वल कब कटेगा? जब आप ऐसे काटोगे तब तो कटेगा। यस अगर ऐसे काटोगे तो इक्वल कटेगा। यस मैम। तो आपको इन लाइंस को ऐसे कट करना है जैसे ये बिल्कुल इक्वल हो। बी को बीच में से कट करोगे, सी को भी, डी को भी, पर एच को आप ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कट, दोनों तरफ से ये इक्वल होगा। यस आई भी अगर यहाँ से कट करोगे तो भी इक्वल होगा, यूँ कट करोगे तो भी इधर उधर इक्वल आएगा। एम को आप सिर्फ यूँ ही कट कर सकते हो, तो यूँ करोगे तो इक्वल। ये सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ओ को यूँ कट करोगे और यूँ कट करोगे, टी को कैसे कट करोगे? टी को ऐसे ही तो कट करोगे। yes। तो आधा टी इधर आएगा और आधा टी। अगर आप यूं कट करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो यूं आ जाएगा और यहाँ पर खाली यूं आएगा, तो ये इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा। यू को यूं कट करोगे तो इक्वल होगा, वी को भी बीच में से काटोगे तो इक्वल होगा, डब्ल्यू भी यहाँ से काटोगे, एक्स को दोनों तरफ से काट सकते हो, वाई को, तो ये आएंगे। एंड देन डू द एक्सरसाइज।